Hello. Hello. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. So today we are going to discuss about interview. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. सब बढ़िया? हाँ जी मैम. Okay. Just one more thing. Just wait. Nisha will be joining after a while. Okay. So can you see the screen? Yes. Is it Yes, visible? ma'am. Yes. Okay. So today we are going to discuss about interview, what actually is to be done in interview and what the interviewing officer will be asking, right? And what is the strategy to dodge or to surpass some questions which are difficult and which you don't have any idea about, right? Before that, एक बार थोड़ा पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है, कौन कौन से एरियाज पे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं वो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, राइट? थोड़ा बहुत हमको आइडिया है कि वॉट एवर इज देयर इन योर PIQ, you have to prepare questions related to the PIQ form very nicely, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से होंगे. फॉर फ्रेशर्स दैट इज द केस. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बाहर से रहते हैं, उसको मैं आज बता दूंगी. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट फेज. अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज, जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं ना, फ्रेशर्स, उनके साथ कहानी क्या होती है कि दे दे गेट CIQ बेस्ड, है ना? मतलब रैपिड फायर चलेगा और उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है, 1 2 3 4 ऐसे राउंड में. फर्स्ट राउंड में ही विल बी आस्किंग 10 to 12 क्वेश्चंस इन वन गो, है ना? Tell me something about yourself, tell me something about your family, about your educational background, about your hobbies and interests, about your participation in sports, about your friends, what subjects have you taken, and which subject did you like, which subject you did not like. ठीक है, tell me why you want to join defense forces, what will happen if you want to join the defense forces. So this is the full pattern he will be asking in one go. ठीक है, about you. Okay, so that in that what you have to do, you have to be prepared. आपको सुनना बहुत ध्यान से है, listen very carefully and just keep a reminder in your brain that what questions is he asking. ठीक है, suppose about yourself हो गया, about friends हो गया, about family हो गया, about education हो गया, you have to keep every question in your brain. ठीक है, then you have to answer accordingly one by one. Just give the answers serial wise, it's not important, पर important क्या है, that you answer all questions and don't answer such question which is not asked. कभी कभी क्या होता है, हमारी आदत होती है कि because we have learned this pattern of CIQ, so we tend to answer those questions which are not even asked, right? So please be careful about that. And another factor here is, when you are answering questions, suppose you answered 1 2 3 4 fifth question, if you are answering, he may interrupt you in between. ठीक है, he may interrupt you in between by asking some subsequent question. ठीक है, he can ask some question in between, then you have to answer that question, then he can say okay, go ahead. So then you have to continue the series 6 7 8 जो भी CIQ 1 में पूछा हुआ था, you have to continue with that, but he can always interrupt you. So what you require good listening power, you require good memory, that you remember all those questions, right? Little bit of smartness is needed, don't forget the questions, right? So this will happen mostly with the freshers. ठीक है, so first round would be mostly sports, curricular, मतलब about yourself only. ठीक है, second round would be regarding family and what they are doing, what is their educational background, etc. Next would be hobbies, interest, friends.
ठीक है. नेक्स्ट वुड बी डिफेंस का, दे कैन आस्क डिफेंस जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड some other question that the interviewing officer want to ask. ठीक है. यहाँ पर sometimes they give you situations also, situations just to check your decision making power, your confidence, your courage, or if the interviewing officer is worried about some particular point in your personality, so he may give you situations accordingly. ठीक है. Speed of decision he is checking. So ये वन बाय वन क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांटेड टू गिव यू दिस ब्रीफ आइडिया अबाउट इंटरव्यू. जनरली 40-45 मिनट्स का इंटरव्यू होगा. ठीक है. समटाइम्स 30, समटाइम्स लेस देन दैट, समटाइम्स मोर देन दैट. एवरेज वुड बी 40-45. ठीक है. यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, or if you are stuck or if you want to go with Hindi, so you can go with Hindi, but mostly go with English only and keep a very confident face and a smiley face throughout. See, his task is to bog you down, is to pressurize you, but you do not have to take that pressure because you are going there to get selected, right? If you will be very confident and give all the questions, all the answers to his questions, so that will impress him. But this may happen that you don't know what is to be answered there. So you can politely say, sir, I am not aware of this question. Can you please repeat it? Or I will study about it later. है ना. वहां पर फेस ऐसा नहीं बनाना है कि मुझे नहीं पता तो अब कुछ बहुत गलत हो गया. वी आर ह्यूमन बींग्स, नेचुरल है कि सब कुछ नहीं पता होगा. सो हाउ यू आर टैकलिंग दैट, ठीक है, हाउ यू हैंडल सच सिचुएशंस इज व्हाट रिक्वायर्ड. फाइन. मोर ओवर he will be writing something in his notebook, है ना. कुछ markings वगैरह कर रहे होंगे. They are generally writing down whatever you are answering. ठीक है. And the questions will be framed based on the PIQ. Now what is he checking? See, उनके पास एक पूरा blank sheet होती है जिसमें they answer, they mark, they give you the marks based on the OLQs. 1, speed of decision. 2nd, reasoning ability. 3rd, initiative. 4th, sense of responsibility. 5th हो गया cooperation. 6th हो गया courage. फिर हो गया आपका stamina, determination, है ना. Whatever. So we have a set of 15 OLQs जिस पर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. So all assessors are checking only these 15 OLQs. तो इंटरव्यू लेने का जो मतलब है, दे आर आस्किंग अबाउट योर लाइफ, योर सराउंडिंग्स, बट चेक क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं OLQs. ठीक है. जैसे जैसे उनको OLQs मिलते जाएंगे वैसे वैसे वो चेक कर लेंगे. मान लो कोई एक OLQ रह गया, आपका करेज वाला फैक्टर रह गया. ठीक है. करेज वाले फैक्टर पे आपने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो उनको सुन के लगाओ कि हाँ बंदे में दम तो है. In that scenario, he will be giving you questions, situational questions. Ki suppose you are going on a bike and you saw an accident and the person is seriously wounded, so then what will you do? है ना? And you are getting late for your exam. So these kind of questions, he is checking your speed of decision, your courage, and your cooperation power, right? So to that kind of candidates, the interview may go for like 1.5 hours. किनका? जिनका OLQs नहीं पता चलते. ठीक है. यूजुअली जो रिकमेंडेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनका छोटा इंटरव्यू भी चलता है, और कभी कभी जिनके फैक्टर्स क्लियर करने होते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, तो उनको वो मतलब लंबा भी खींच देते हैं, है ना, सिचुएशंस पे, व्हेन ही इज नॉट श्योर अबाउट पर्टिकुलर OLQ. राइट. ये चीज क्लियर हुई इतनी? यस मैम. हाँ. यस मैम. ठीक है. अब आपको पूरे इंटरव्यू में पहली चीज तो ये करनी है कि PIQ और PIQ पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एकदम आपको टिप्स पे होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे, दैट वो ना छूटे. भले आपसे जनरल नॉलेज ना बने, करंट अफेयर्स ना बने, बट PIQ शुड बी देयर. ठीक है. हर आंसर में हर आंसर में व्हाट यू हैव टू ट्राई टू शो
your OLQs. ठीक है, to show your OLQs because he is searching for that. वो 15 टिक लगाने के लिए बैठे हैं वहां पे. तो आपको कोशिश करनी है कि that frame your answers like that. If you are telling about your friends, so just show that you are very lively with them and you always go hang out with them and you make the plans, you take the initiative, you help them, है ना. OLQs पर ज्यादा स्टिक रहना है. वो आपके और किसी भी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं है. फाइन. सो अब हम एक एक बार क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. सबसे पहले पूछेंगे, अच्छा सबसे पहले व्हेन यू एंटर दी हॉल, है ना, यहाँ पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठे होंगे. यहाँ पर अ चेयर विल बी प्रोवाइडेड फॉर यू, यू हैव टू सिट देयर. You will just, may I come in sir, good morning sir, he will tell you good morning, sit down, you will sit down and then he will just try to comfort you. So शुरू के 4-5 questions would be just to comfort you कि suppose your name is Akshay. So, hello Akshay, how are you? And how was your journey? How did you come from your hometown to here? And did you make friends? Or what all things did you like about the campus? है ना. तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग की पूछेंगे. What did you have in the breakfast? What was there? Are you feeling hungry or not? है ना. और मतलब शुरू के 4-5 क्वेश्चन जो नॉर्मल इंटरेक्शन पे पूछता है. फिर ही विल गिव यू द ब्रीफिंग कि अच्छा ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, सो लेट्स बिगिन विद द इंटरव्यू. ठीक है, फिर आपका एक्चुअल असेसमेंट वहां से शुरू होगा. तो शुरू के 4-5 क्वेश्चन जस्ट फॉर चिल. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. है ना, यहाँ पे आपको अपने बारे में, द प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम and your education, your hobbies, interest, whatever you think is required in tell me something about yourself, you can just give answer to that. Then about your strength and weaknesses, this question is personal but is asked mostly in the last. मतलब last 2-3 questions में one question would be tell me something about your strength and weakness. है ना. तो give a thought on your personality. What are your strengths? What are your weaknesses? And keep two examples ready. 2 examples ready for that. क्योंकि अगर आपने बोला कि सर my strength is that I am very hardworking, he will be asking 2 examples. ठीक है. If in your weakness you say sir my, suppose any weakness you are saying that I am lazy, I don't do work, so he will be asking questions. Then what are you doing to improve those weaknesses? ठीक है. तो स्ट्रेंथ आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और वीकनेस आपकी थोड़ी बहुत लाइट होनी चाहिए जो कोर पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट ना डाले. ठीक है भाई, समझ में आया. सो दीज क्वेश्चंस विल बी इन द लास्ट एंड द सेम वीकनेसेस यू कैन ऑल्सो मेंशन इन योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. ठीक है, वो आपका थ्रू आउट नजर आना चाहिए कि इस बंदे में ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेसेस हैं. एंड यू हैव टू एडमिट दैट. That shows that you are self-aware. You have enough knowledge about yourself. You understand your weaknesses and you are working to improve them. Fine. फिर describe your daily routine. Now this daily routine is very important. Don't try to lie. ठीक है, don't lie. Sometimes what we say, sir, we wake up 4:30 a.m. and we do workout, then we do study, then we go for college, then we do this, that. But आपने interview के in 10 minutes you have answered this question, and on the 40th minute he will be asking you some question which will be based on daily routine. पर वो घुमा के पूछेंगे. वो घुमा के पूछेंगे अच्छा ठीक है, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स और सिबलिंग्स, है ना, या व्हाट यू डू ऑन पर्टिकुलर संडेज. तो इफ यू हैव लाइड हियर, है ना, और वो उन्होंने लिख लिया है अपने पेपर में, ही राइट्स एवरीथिंग, वो लिख लिया है उन्होंने और वो दोबारा क्रॉस चेक कर रहे हैं जस्ट टू चेक योर ऑनेस्टी और वर यू ट्रूथफुल और नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू हैव गिवन द सेम आंसर तब तो ठीक है. इफ यू लाइड तो वो फिर दे विल नॉट पुट अनदर क्वेश्चन अगेन, वो वहीं पे मार्क कर देंगे कि ऑनेस्टी पे डाउट है इस बंदे के. ठीक है,
तो whatever you are answering, be very sure and be the most honest self. Don't lie. ठीक है? And don't prepare any prepared answers of anybody's. ठीक है? Your life, your personality is different from my life, my personality. ठीक है? तो ये एक चीज हो गई कि कहीं पर भी झूठ नहीं बोलना है. और whatever answer you will give, आप अपने इंटरव्यू में ये चीज चेक करेंगे या नोटिस करेंगे that each आंसर दैट यू आर गिविंग, वो उसको उसी इंटरव्यू में क्रॉस चेक भी कर लेंगे घुमाकर. ठीक है? हर आंसर को. सम आंसर्स वो पीआईक्यू से क्रॉस चेक कर लेंगे, कुछ आंसर्स आप खुद ही बता दोगे कि हमने पहले गलत बोला था. तो उस चीज को ध्यान देना. फिर व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू ब्रिंग इन योरसेल्फ, ये तो वीकनेस वाले फैक्टर में आ गया. हाउ डू योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू एंड हाउ डू योर पेरेंट्स डिस्क्राइब यू. और व्हाट यहाँ पर डिस्क्राइब यू में बेसिकली ही इज आस्किंग अबाउट दी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. मेरे इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, अच्छा ठीक है, इफ आई मेट योर फादर समडे एंड सो व्हाट 3 क्वालिटीज ऑफ योर्स ही विल टेल मी टू इम्प्रूव, है ना, अबाउट यू. तो फिर व्हाट ही इज आस्किंग माय वीकनेसेस. किसके नजरिए से? अबाउट माय फादर. कि आपके फादर जब मुझे मिलेंगे तो वो आपके बारे में मुझे क्या 3 क्वालिटीज बताएंगे जिसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. ठीक है? अब यहाँ पर ही इज आस्किंग कि मेरे पेरेंट्स को मेरी क्या वीकनेसेस लगती हैं, है ना. सेम ही कैन आस्क अबाउट दी फ्रेंड्स, सेम ही कैन आस्क अबाउट दी अबाउट एनी अदर पर्सन कि आपके सिबलिंग्स अगर कभी मुझे मिल गए तो क्या स्ट्रेंथ बताएंगे. यू ओनली हैव टू गिव योर दीज स्ट्रेंथ्स एंड दीज वीकनेसेस. और वॉट एवर यू आर राइटिंग इन योर एसडी, इन योर पेरेंट्स सेक्शन कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं, इन योर फ्रेंड सेक्शन, बट मेक श्योर दैट दीज आर नॉट वेरी बिग weaknesses or qualities. Now what did I answer to him? पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर मैंने दिया था. सर, इफ यू मीट माय फादर, he will he will just appreciate me in front of you because my father is not the one who will tell weaknesses to any stranger. ठीक है? And my father is very proud of me. He always admired me and my hard work that I am doing. So, sir, I don't think that he is going to tell you anything, right? So, this is the question that I tried to dodge. Just one minute. Sonak is contacting me. Just 1 second, huh? I don't know what happened to him. Just 1 minute, huh? Yes. नहीं नहीं, मैं class is going on. Yes, Sonak, class is going on. अच्छा, मैं नहीं हूँ क्या? जस्ट 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड. तो बताना होता है ना. ओ भाई साहब. आप निकल, मुझे लगा कि शायद आप रिजॉइन कर रहे हैं शायद, नेटवर्क इशू शायद, मुझे भी लगा. ओहो यार, ये तो गड़बड़ हो गई. ठीक है, ठीक है. हाँ हाँ, सो यू गाइज आर देयर इन द मीटिंग. हाँ, you'll be able to join in a moment. This call is open. ठीक है, join the meeting. Hello. हाँ मैम, अभी Okay, thank you so much because I just continued the class. कहाँ तक सुन लिया था आप लोगों ने? मैम हम लोगों को पीआईक्यू के बारे में बता रहे थे आप, एंड आल्सो अबाउट टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जो है ना, वो पार्ट बता रहे थे. अरे वो तो बता रही थी, पर उसके बाद मैंने बहुत कुछ बता दिया है. हाँ मतलब वो तो है, बट मेन वो क्वेश्चन वही था. हम लोग उसके बाद वहीं तक सुने थे मैम, उसके बाद आप एग्जिट हो गए. ठीक है, एग्जिट तो हो गए. मतलब मुझे पता नहीं चला एक्चुअली. बता, बीच बीच में यस मैम बोलते रहो ताकि मुझे पता चल जाए. ठीक है? ओके मैम. हाँ. मुझे ना वीडियो ऑन करके पढ़ना अच्छा, मतलब आपका वीडियो ऑन है क्या? वीडियो ऑन नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है, सो दैट्स व्हाई वो कैमरा ऑन नहीं हो रहा है.
ठीक है। सो ठीक है। जस्ट मुझे अभी इतना बताओ कि मैंने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे या व्हाट योर फादर विल डिस्क्राइब यू टू मी वो बता दिया क्या? नो मैम, नो मैम। मैम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे आपने कहा था कि स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांग रखना है, वीकनेस को लाइट मतलब ऐसा चलने वाला रखना है, हाँ, लेकिन और पेरेंट्स ये नहीं। ठीक है, और ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस, हाउ डू योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू, हाउ डू योर पेरेंट्स, नो मैम। नो नो। मैम, नो मैम, ये नहीं हुआ हुआ। नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ या फिर रिकॉर्डेड में देख लोगे, क्या करूँ? मैम रिपीट ही कर दीजिए मैम, प्रॉब्लम नहीं है अगर हाँ हाँ, होगा ठीक है, तो। ओके चलो, सो आई एम रिपीटिंग इट. So what changes you have to bring in your life? उसमें you have to give your weaknesses, what you are improving, and give the genuine improvements. Suppose earlier my running stamina was only for 2 kilometers, but now I have improved it for 5 kilometers. With good timing, suppose 25 minutes. Earlier I was taking 35 minutes. So that kind of improvement with some examples you have to tell him. Okay. And how do your friends describe you? How do your parents describe you? In these questions also, he is just trying to know what strengths you are having or what weaknesses you are having or what he might tell you. uh, मतलब कि हमारे पेरेंट्स हमको क्या बताते हैं, हमारी क्या क्वालिटीज अच्छी हैं, क्या खराब है. सो द सेम विच यू विल बी राइटिंग इन द SD, सेम बताना है. ठीक है. सपोज माई फ्रेंड से दैट आई एम वेरी कोऑपरेटिव, तो आपको यहाँ पे वही बताना है. वीकनेसेस में इफ माई फ्रेंड से दैट आई शुड स्पेंड मोर टाइम विद देम, सो आपको वही बताना है दैट दे आस्क दैट आई हैव टू स्पेंड मोर टाइम विद देम. राइट. यस मैम। हाँ, और एक बार रिकॉर्डेड वाला भी देख लेना, उसमें मैंने मेरे इंटरव्यू का कुछ एग्जाम्पल दिया था, तो वो यू विल लाइक इट. ठीक है. ओके मैम। हाँ. नेक्स्ट कम टू योर फैमिली बैकग्राउंड. फैमिली बैकग्राउंड में सबसे पहले कितने मेंबर्स हैं ये आपको पता है, उनके रूट्स क्या हैं, यू शुड नो. ठीक है. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ योर फादर्स फैमिली, ओरिजिन ऑफ योर मदर्स फैमिली. ठीक है. एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड योर पेरेंट्स आर हैविंग. ठीक है. देयर एजुकेशन, देयर ऑक्यूपेशन, हाउ डू यू स्पेंड टाइम एट होम. ठीक है. व्हाट क्वालिटी ऑफ योर मदर्स यू लाइक अबाउट, यू लाइक मोस्ट about your fathers also, what you do not like. अच्छा, अब अगर आप किसी की भी डू नॉट लाइक वाली क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो इसमें ऐसी क्वालिटी मत बताओ जो बहुत बड़ी क्वालिटी है ना. सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड. सेम चीज पहले भी हुआ था मैम। हेलो। हाँ. यस. ओके ओके मैम, मैम इज देयर। हाँ. आर यू देयर इन द मीटिंग? मैं हूं या नहीं मीटिंग में? हाँ मैम, आप यस हो मैम। मैम। ठीक है, आप तो मैं हो, ये बट कह रही तब भी हूँ. ऐसा ही हुआ था। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ दैट इफ whenever you are telling the bad quality or the negative quality about anyone because he is your friend, तो वो पूछ सकते हैं अच्छा ठीक है उनकी क्वालिटीज बताओ जो उनको इम्प्रूव करनी है. वहां पर भी डोंट गिव एनी अदर क्वालिटी विच इज वेरी बैड. क्यों? बिकॉज द क्वालिटी दैट यू सॉ इन द अदर पर्सन, उनको लगेगा दैट दिस पर्सन इज यू. ठीक है. समझ रहे हो? और अगर मैम किसी की. ऐसे मैम मैम ऐसे तो बोल सकते हैं ना कि लाइक मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है तो वो थोड़ा मतलब जो ही वुड लाइक टू हिट द जिम सेशन, बट व्हेन इट इज अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सेशन लाइक रनिंग, हम्म. सो ही ऑलवेज वांट्स टू रिफ्यूज इट। तो ऐसा हम लिख सकते हैं मैम, दैट इज एज अ वीकनेस, मतलब समटाइम्स हु इज द थिंग आई डोंट लाइक अबाउट हिम। ठीक है, पर बहुत जेन्युइन नहीं बोलना है. देखो, लेट मी गिव यू द एग्जांपल. सपोज आई एम हैविंग एल्डर ब्रदर. ठीक है. उनको इफ माय इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल आस्क कि अच्छा शिवानी अपने भाई के एक कोई अच्छी क्वालिटी बताओ, तो आई विल टेल कि सर माय ब्रदर इज वेरी डिसिप्लिन्ड. है ना. he does all the work at the right time and he is very good in managing all the things and he is very punctual. अच्छा, now what it will show about my personality? मेरा भाई बहुत डिसिप्लिन्ड है. आई एडमायर दिस थिंग. इसका मतलब क्या है? मैं उस एट्रीब्यूट्स को ले रहा हूँ अपने अंदर, मतलब एडमायरिंग। नहीं,
आप सामने वाले की वही क्वालिटी एडमायर करते हो जो आपके अंदर नहीं है। ओह अच्छा ऐसा है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि सर आई एडमायर माई ब्रदर्स डिसिप्लिन हैबिट एंड ही इज वेरी पंचुअल, विच शोज दैट आई एम नॉट पंचुअल इनफ। मैम ऐसा होगा तो फिर हम अगर कुछ अच्छा मतलब लोग करते हैं तो अगर मान लीजिए कि आई एम ए गुड फुटबॉल प्लेयर, सो इफ समवन गुड ग्रेट स्किल्स और समथिंग एल्स, सो आई विल ऑफ कोर्स लाइक अपलॉड हिम। तो इसमें तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैम अगर नहीं मेरे को नहीं, आइडिया ही नहीं है अच्छा क्या in होता है that तो हाँ। case in that case you have to frame answer like that, sir, in my family mostly we all of us are very disciplined and very punctual, so I admire the quality which I am also having and my brother is also having, he is also disciplined like me. ओके। ठीक है, दैट इज द वे ऑफ आंसरिंग। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था इन वन ऑफ माई इंटरव्यूज, माई वेटिंग पीरियड वॉज लाइक फॉर 30 minutes वेटिंग पीरियड, और मेरे साथ हॉल में एक और लड़की बैठी हुई थी। ठीक है, सो वी वर टू कैंडिडेट्स, वो पहले गई, उसके बाद मैं गई इंटरव्यू देने। ठीक है, सो व्हाट वाज हैपनिंग in the waiting hall, I was very chill and I was relaxed reading newspaper and just sitting watching TV, but this person was very tense and very pressurized. ठीक है, और मैं उसको रिलैक्स कर रही थी कि नहीं नहीं आप रिलैक्स रहो, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, इट्स जस्ट एन इंटरव्यू। व्हाट हैपेंड व्हेन आई वेंट इनसाइड, मुझसे दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने ये बोला था that you were sitting there for 30 minutes, tell me any two good qualities that you noticed about the person you were sitting with. ठीक है, ओके। so he is checking the presence of mind कि आपने क्या नोटिस किया, आप अपने इंटरव्यू के बारे में खुद ही इतना नर्वस थे कि आपने उससे बात भी नहीं करी या आपने उससे इंटरेक्शन किया, एंड व्हाट हैव यू नोटिस्ड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सर दैट पर्सन वाज वेरी चिल, शी वाज वेरी रिलैक्स्ड एंड शी वाज नॉट टेकिंग एनी प्रेशर। तो मैंने उसकी ओके। अच्छी क्वालिटी बतानी चाहिए, बट ऑल्दो द पर्सन वाज वेरी प्रेशराइज्ड, राइट। ओके मैम। एंड क्या हुआ कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने फिर मेरे मुंह पे मुझे बोल दिया, इफ शी वाज वेरी चिल एंड नॉट प्रेशराइज्ड, वर यू। अच्छा ऐसा। ठीक है, सो दैट मींस यू वर प्रेशराइज्ड। तो तो उन्होंने, मैम फिर आपको आपको आपके लिए वहाँ पे राइट रेस्पॉन्स क्या होता है कि ऑल ऑफ आस आर वेरी चिल अबाउट द मतलब इंटरव्यू एंड नहीं, वर जस्ट। उन्होंने बोला कि उसकी कुछ अच्छी क्वालिटी बताओ, तो मैं ये बोल सकती थी कि सर वी बोथ वर सिटिंग एंड वी वर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, आई लाइक अबाउट हाउ शी डिस्क्राइब्स हर फैमिली, मतलब मैं कुछ भी बोल देती, पर वो प्रेशर ओके। वाला सिचुएशन पर तो उन्होंने जज कर लिया ना। अच्छा मैम। फिर मुझे ओके। इसको करेक्ट करना पड़ा, क्योंकि सी वो लड़की मेरे से पहले गई थी एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने उसका फुल इंटरव्यू लिया, उनको तो पता होगा ना कि वो प्रेशर में थी या नहीं थी, यस मैम। है ना। बट आई गेव द रॉन्ग आंसर बिकॉज आई वॉन्टेड नॉट टू शो हर बैड क्वालिटी, पर उस वजह से मैं फंस गई वहां पर। ठीक है, अच्छा मैम। सो प्लीज मेक श्योर दैट अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी क्वालिटी बता रहे हैं, अबाउट योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एनी क्वालिटी दैट यू आर टेलिंग, जस्ट मेक श्योर या तो वो आप में है और आप उसको बैकअप दे रहे हैं। कुछ ऐसा मत बोलना कि माई ब्रदर इज वेरी हार्ड वर्किंग, डायरेक्टली इट विल रिफ्लेक्ट दैट यू आर नॉट। ठीक है, यस मैम। हाँ मैम मैं तो मतलब ऐसा कुछ बोल सकते हैं मैम जो सच में मेरे में नहीं है, क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच गुड हैंड राइटिंग हाँ, एज मच एज माय सिस्टर। तो तो उस टाइम पे सी इफ यू रियली एडमायर समवन्स क्वालिटी, उसको बोलना है सर आई लाइक माई सिस्टर्स हैंड राइटिंग एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग लाइक हर, आई genuinely like her writing and which I do not have, so I usually ask tips and tricks that how she is able to write that. ठीक है, ओके। अगर आपको सच में किसी की कोई क्वालिटी पसंद है और खुद इम्प्रूव कर रहे हैं, देन जस्ट टेल दैट आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग अपॉन दिस क्वालिटी। ठीक है, और इफ देर इज सम क्वालिटी विच यू आर ऑल्सो हैविंग, तो उस क्वालिटी पर और सामने वाले का भी आपको सेम क्वालिटी बताना है, तो बोलना है सर आई एम ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन एंड माई ब्रदर इज ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन, सो आई एडमायर हिज दैट एबिलिटी। ठीक है, ओके मैम।
तो ये चीज पे बहुत ध्यान देना है, कहाँ से आपको जज कर लिया जाएगा यू डोंट नो, ठीक है। देन व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डू यू टेक एट होम, यहाँ से समझ में आता है कि आप घर पे कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ रोल यू आर हैविंग इन योर फैमिली, डिसीजन मेकिंग पे हाउ मच यू आर इन्वॉल्व, राइट। और व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू योर पेरेंट्स हैव फ्रॉम यू, इसमें तो एकदम जी खोल के बोल देना एक्सपेक्टेशंस क्या है, कि हम जल्दी से आर्मी ऑफिसर बन जाएं, है ना, जल्दी से मतलब अचीव द एम, because they are seeing me that I am putting lot of hard work in my dreams and they want me to achieve those dreams soon, right? ठीक है। Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, सो फैमिली हो गया। फिर एजुकेशन बेस्ड, यहाँ पर नॉर्मली व्हाट स्कोर्स डिड यू गेट इन योर फ्रॉम योर क्लास 10th टू क्लास 11th टू योर ग्रेजुएशन। यहाँ पर मेक श्योर जनरली दे आस्क फ्रॉम 10th, ठीक है, बट इन वन ऑफ माई इंटरव्यू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्ड माई स्कोर्स फ्रॉम क्लास 8th ऑनवर्ड। यस मैम, मेरे कोचिंग में दे सेड कि 8 से लेके टिल वट एवर यू आर डूइंग वहां तक के ग्रेड्स याद रखने हैं। यस, सी, तो नॉर्मली जो ट्रेंड होता है वो होता है 10th ऑनवर्ड्स आप बताइए, बट CIQ पैटर्न में जब वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सो वी ओनली रिमेम्बर दैट स्कोर्स पूछा है एजुकेशन का, वी फॉरगेट दी क्लास, है ना, एंड ही इज चेकिंग ऑन दैट। सो प्लीज बी वेरी श्योर कि 8th का पूछा है या 10th का पूछा है या 12th का पूछा है, ठीक है। मैम 8 का तो मेरे पास मुझे याद भी नहीं है तो क्या कैसे पता करूं तो अपनी 8th क्लास की मार्कशीट देखो। कब का। हाँ वो घर मतलब यहाँ पे तो नहीं है। आई कैन कोई बात मैनेज। नहीं, इट्स ओके। चलो देखो, अब एजुकेशन में क्या पूछेंगे, टेल मी अबाउट योर स्कूलिंग, अबाउट योर कॉलेज लाइफ, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई, एंड व्हाट यू डिसलाइक एंड व्हाई। यहाँ पर भी ध्यान देना, आपने मेहनत से पीछे भाग रहे थे या व्हाट इज योर रीजन फॉर नॉट लाइकिंग दैट सब्जेक्ट, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग आंसर्स फॉर दैट। Also, what subjects have you chosen in your class 11th and why? After 12th, what stream did you choose for graduation and why? बहुत strong reason होना चाहिए उसके लिए। क्यों? Because your decision making, he is checking your decision making और आप उस पे कितना टिके हुए हैं, ठीक है। Then about your teachers, which teachers you like the most, which teachers you did not like. Then what positions have you taken, role and responsibility. What improvements would you bring in your school college, ये उतना important नहीं है, ठीक है। क्या क्या मैम अगर मुझे मैम यहाँ पे एक डाउट है कि लाइक इफ दे आस्क दैट व्हिच सब्जेक्ट यू लाइक इन ग्रेजुएशन मतलब क्या चूज किया था। हाँ तो अगर मैं बोला कि आई टू कंप्यूटर साइंस फॉर एक्चुअली आई लाइक द थीम ऑफ गेम डेवलपमेंट एंड आई आल्सो स्टार्टेड लर्निंग पाइथन इन द बिगिनिंग। So in 12, okay, then they can ask them. So why do you want to shift from the IT sector to armed forces? They can अरे also आर्म फोर्सेस में दे आर ओपनिंग अप सो मच प्लेटफॉर्म फॉर दिस AI बेस्ड ऑफिसर्स, है ना, साइबर सिक्योरिटी के लिए ऑफिसर्स। तो आर्मी इज ऑल अबाउट टेक ओनली, मतलब दे आर इंडक्टिंग मोर ऑफिसर्स फॉर दैट, okay. ठीक है। मतलब अभी आप देखोगे जो भी न्यूज हेडलाइंस वॉट एवर यू आर सीइंग कि 400 प्लस मोर ऑफिसर्स इज टू बी इंडक्टेड, जो पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी के लिए हो, है ना। हाँ हाँ पढ़ रहा था मैं। यस, एंड वी आर वर्किंग ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी, कितने सारे ड्रोन ड्रोन्स टेक्नोलॉजी। इंडक्ट हुए हैं, एंड सो एवरीथिंग रिक्वायर्स कोडिंग, यस मैम। है ना। तो आप ये सारे क्वेश्चंस में वो परेशान नहीं होना। अभी आर्मी वो नहीं है कि आपको यू हैव टू गो विद द गन एंड देन किल द एनिमी, इट्स ऑल अबाउट टेक। अब तो मैम मिनी ड्रोन भी मेरा हमारे कॉलेज का बच्चा ना बनाया था मतलब स्मॉल टाइप का कार होता है ना। तो हाँ छोटा एकदम वो कैमरा अटैच वो एक बनाया था सेकंड ईयर के लड़के में हमारे कॉलेज का टेक्नोथॉन होता है हमारा। तो हाँ उसमें बनाया था। तो मतलब वो अच्छा लगा मेरे को मतलब दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ लाइक सिटी एंड सीआई ऑप्स आई यस थिंक। यस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, फ्रेंड्स के बारे में पूछेंगे। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, कभी कभी क्या होता है वी ओनली डिस्क्राइब
वन फ्रेंड, कि मेरे पास एक ही दोस्त है और मेरा दैट आई हैव ओनली वन फ्रेंड, सो दैट शोज दैट यू आर नॉट सोशल। ठीक है, ये आपका जो सोशल अडेप्टेबिलिटी। हेलो। Yes, ma'am. हाँ हाँ। यस मैम, यस मैम। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड्स, तो दे ट्राई टू डिस्क्राइब देयर बेस्ट फ्रेंड। ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू गिव योर फ्रेंड्स, मतलब आपके अच्छे खासे फ्रेंड्स बताओ कि मेरे तो बहुत फ्रेंड्स हैं, हर जगह जहां मैं जाती हूँ वहां मेरे फ्रेंड्स हैं। यू हैव टू स्टार्ट योर लाइन लाइक दिस। ठीक है। Then, sir, I have friends in my neighborhood, I have friends in my school, I have friends in my relatives के साथ जो भी cousins वगैरह हैं, they are also like my friends. ठीक है, so I am a very jolly person, I make friends. Then he will come to that part कि अच्छा ठीक है, tell me something about your close friends or your best friend. So he will say अच्छा ठीक है, choose any three friends which are very close to your heart. So then you have to pick three friends. फिर थ्री फ्रेंड्स का ही कैन आस्क टू गुड क्वालिटीज, टू बैड क्वालिटीज. सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट दे आर डूइंग एंड देयर गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज. मेरे इंटरव्यू में पूछा था, आई हैव गिवन हिम 6 नेम्स एज माई क्लोज फ्रेंड्स. ठीक है, 6 नेम्स में 3 गर्ल्स 3 बॉयज. ऐसा भी नहीं हो कि अगर आप लड़के हो एंड यू हैव ओनली मेल फ्रेंड्स, तो फिर आपका भाई आपका एडजस्टेबिलिटी है ही नहीं, यू डू नॉट हैव एनी फीमेल फ्रेंड्स. ठीक है, इंक्लूड मेल फ्रेंड्स फीमेल फ्रेंड्स collectively in your friend circle. Then he asked कि अच्छा ठीक है, what they are doing, so you should know where they are, what they are doing, what is their background and what good qualities and bad qualities you like about them. तो मुझसे मेरे 6 के 6 फ्रेंड्स के बारे में एक गुड और एक बैड पूछा हुआ था. ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम. हाँ मैम एक्चुअली ना आई गेस मतलब बहुत सारा केस में लड़के लोग एक्चुअली जेन्युइनली अवॉइड करते हैं फीमेल फ्रेंड्स का नाम, इसीलिए क्योंकि वो मतलब बैकअप क्वेश्चन आता है ना, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, तो इसीलिए शायद मतलब वो थोड़ा प्रेशराइज करना पड़ता है ना, मतलब नहीं करते हैं ना नहीं, इंटरव्यू. तो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था कि मुझसे ये पूछा गया. ठीक है, और उसके 20 मिनट के बाद ही केम बैक टू दैट क्वेश्चन कि अच्छा ठीक है, योर फ्रेंड मेघा व्हाट वाज शी डूइंग, और मतलब कुछ ऐसा पूछा जो 20 मिनट के बाद ही केम बैक टू दी प्रीवियस क्वेश्चन, और उन्होंने नाम लिया फ्रेंड का, which means that he had written that. ठीक है, so he gave me another question or I was giving him some example of some situation, so he said कि अच्छा मेघा. पर उसके बाद he came to the boyfriend वाला question पे, so then he again came to that question and the name that I have mentioned here, ठीक है, उन्होंने by name ही told कि अच्छा ठीक है, what this person is doing right now. Fine. अच्छा. तो don't lie or don't try that you can skip any question. What you can do better is just whatever is true in your life, just speak it. ओके. समझ पा रहे हो? मैं आपको हमेशा यही बोलूंगी कि आपको यही करना, बिकॉज दैट इज द मंत्रा. यस मैम. ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट क्वालिटीज यू लाइक, व्हाट क्वालिटीज यू डिड नॉट लाइक, ये मैंने बता दिया आंसर कैसे करना है. जो आपको पसंद है इसका मतलब ये है वो आप में नहीं है. ठीक है, what activities do you do together? You give that we go for tours and trips, and we go for hangout, we go for movies, we go for games, etc etc, so that you can answer. And have you ever had a conflict with your friends? If yes, how did you resolve? What kind of mismanagement is there in your friends? तो वो सब. He only wants to know your thought process. मुझसे पूछा था कि तुम्हारा एक बड़ा भाई है, तुम्हारा एक छोटा भाई है, तो तुमको ऐसा नहीं लगता तुम अपने घर में पिस रही हो दोनों भाइयों के बीच में? हेलो. Yes, यस ma'am. मैम. हाँ, तो अब सोचो इंटरव्यूइंग ऑफिसर, मैं उनको मेरी फैमिली का एकदम हम साथ साथ हैं टाइप में अपनी फैमिली डिस्क्राइब कर रही हूँ. सर माय फैमिली इज वेरी गुड, माय ब्रदर्स आर वेरी गुड, माय एवरीवन इज वेरी गुड, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव, वेरी लवली फैमिली. बट देन ही सेड कि अच्छा you have two brothers, you must be sandwiched between the choices of the two brothers, है ना? So now he wants to know what are my thoughts on that. ठीक है,
अच्छा अगर मुझे गलती से भी फील हुआ होगा कि हाँ मैं अपने दोनों भाइयों के बीच में आई एम नॉट द वन जो प्रॉपरली इवॉल्व हो पा रही हूँ, तो वहां पर आई गिव डेफिनेटली वन लाइन जो उसको जस्टिफाई कर देगा, ठीक है। बट आई मैम फील कॉन्फ्लिक्ट पार्ट में यस, रिपीट प्लीज। मैम मैं ये पूछ रहा था जो कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट है ना मैम, हाँ तो उसमें क्या होता है कि लाइक मतलब किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट लिखना अच्छा है? कभी कभी स्पोर्ट्स में होता है ना मैम, थोड़ा बहुत टीम लेके और हाँ, तो एक रूल्स को लाइटर लेके। नोट पे बताना कि लाइटर नोट पे कॉन्फ्लिक्ट जैसे मान लो गेम में ही हो जाती है कभी, मतलब जस्ट गिव दिस एग्जांपल कि सर वी प्ले फुटबॉल एंड इन दैट जनरली देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, हम्म, giving the situation, and then when the game is over so the conflict is also over, we are friends, ठीक है। यस मैम। हाँ, बेसिकली आपको ये नहीं बोलना है कि अब मेरा कोई जानी दुश्मन हो गया, लड़ाई हो गई तो जानी दुश्मन हो गया, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है मैम। ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज हॉबीज एंड इंटरेस्ट, मोस्ट important part of your interview that shows how much creative you are and how you apply your brain, what you do in your free time, ठीक है। आप लोगों ने वो PIQ वाला क्लास अटेंड किया है क्या? हाँ मैम। यस मैम। हाँ, वो PIQ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है और एक ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान से भरना है, ठीक है। अबाउट योर हॉबीज, हाउ डू यू परस्यू देम, कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, what have you learned from the hobbies, ठीक है, and which books do you read. Sometimes you don't even mention that I read books, but then also he can ask, अच्छा ठीक है, what book have you read last and what books you are reading right now, तो उसको बताना है। So in और मैम front of अगर बुक रीड नहीं करते तो? books read नहीं करते तो भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके मैम। मैम तो मैम अगर आंसर क्या बताते हैं? आंसर क्या करेंगे अगर बुक्स पढ़ते ही नहीं है तो? तो आप बोल दो कि सर आई जनरली डू नॉट रीड एनी अदर बुक बिकॉज आई एम फोकस्ड ऑन माई प्रिपरेशन, सो आई डोंट गेट इनफ टाइम। ओके मैम। मतलब उसको यू हैव टू गिव द बैकअप ऑल्सो। मुझसे पूछा था कि अच्छा ठीक है व्हाट बुक्स डू यू रीड, सो आई गेव हिम नेम्स ऑफ द some books and some genres I have given him. Then he asked अच्छा ठीक है उनके authors कौन है, and then he asked कि अच्छा ठीक है what is the story all about and what did you like about the character, these kind of questions, and what you are currently reading. So you have to be ready for such questions. And most importantly, these army officers like those candidates who are readers. Ma'am, actually, currently, I am not used to read lot of books, but currently I am reading that book like WYZ का है ना, वफादारी ईमानदारी जिम्मेदारी by I think KGS Dillon, Hmm. लेफ्टिनेंट कोर कमांडर या Hmm. लेफ्टिनेंट जनरल KGS Dillon। तो मैं उनका ही पढ़ रहा था मैम फिलहाल। हाँ, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दे लाइक दोज हु रीड्स बिकॉज रीडिंग बहुत हमारे थिंकिंग को वास्ट करता है ना। इट गिव्स यू सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, विच द ऑथर्स आर गिविंग, एंड विजुअलाइजेशन की पावर बढ़ती है ना। वी डेवलप सो मच इफ वी हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, ठीक है। तो मैम एक क्वेश्चन है हाँ कि सपोज मतलब अगर हम ऐसे आंसर करते हैं कि माय सिस्टर इज वेरी कीन ऑफ रीडिंग बुक्स एंड समटाइम्स शी सजेस्ट मी कि गो रीड दिस बुक, सो एक दो बुक्स आई हैव रेड लाइक दैट, लेकिन मेरा पर्सनल कोई हॉबी नहीं है सच रीडिंग का, हाँ, तो ये तो आंसर? just answer like that कि sir generally I don't prefer reading books because I am into my preparation stage, but of course my sister reads a lot so she suggests me one or two books, so I have read some, ठीक है। read ओके some बोल देना और एक दो का नाम बता देना, ओके मैम। ठीक है। कि यस मैं बहुत ज्यादा टाइम उस पर नहीं देती हूँ, बट ऑफ कोर्स इन नियर फ्यूचर आई माइट गिव मोर टाइम टू द रीडिंग, मैम। यस मैम। ठीक है। तो मुझसे पूछा था मेरे इंटरव्यू में द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब अंदर जाते ही पहला क्वेश्चन था, इन माय इंटरेस्ट पार्ट आई हैव रिटन लर्निंग न्यू स्किल्स, आई हैव गिवन दिस एग्जांपल राइट, पहले दिया है क्या? लर्निंग न्यू स्किल्स वाला? हाँ, यस मैम। ये मुझसे पूछा था कि
what skills you learned in the past 6 months. So past 6 months में मैंने उनको मतलब पहला ही क्वेश्चन था ये, तो जो भी स्किल्स मैंने सीखे थे वो सब बता दिए थे. फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा था जो ठीक है व्हाई नो बिकॉज आई वाज अ रिपीटर, तो मुझसे पूछा what improvements have you done this time, है ना, because you were having so much of history and then you are coming back again for SSB. This is particularly for repeaters. So now what improvements have you done this time? So we should select you. तो उस पर I have given him the answer book से related, है ना, कि सर very recently I am reading a book called Atomic Habits, है ना, and I am very much inspired by this book. Generally I do not read self help, but this book I have read and the first chapter is very nice. तो पहले तो मैंने उनको वो फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया, फिर कहती नहीं 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 नहीं, आपने अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करी, है ना, about this book, what have you learned from that. So I've given him a list of 4-5 changes that I have done in my life after reading this book. ठीक है, so that gave some impression to the IO. चलो ठीक है, मैं जो भी पढ़ रही हूँ उसको मैं implement भी कर रही हूँ in my life, right? हेलो, Yes, ma'am. हाँ समझ में Yes, आया. ma'am. तो आप अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं बी वेरी ऑब्जर्वेंट, है ना, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग जस्ट इम्प्लीमेंट इट. ठीक है, आप गेम खेल रहे हैं इम्प्लीमेंट इट, आप पढ़ रहे हैं इम्प्लीमेंट करो वो, एंड कीप द बॉन्ड विद एवरीवन एज वेरी स्ट्रांग. फाइन. मैम मेरा एक जनरल से क्वेश्चन है ना, हॉबीज एंड इंटरेस्ट में तो डिफरेंस होता है ना मैम, हाँ, राइट? यस. So hobbies mean ma'am, cycling could be a hobby. साइकिलिंग कुड बी अ हॉबी, यस, बट कुड बी इंटरेस्ट ऑल्सो. अच्छा मैम, आई थिंक इंटरेस्ट में हम ऐसे लिख कर सकते हैं जैसे कि जो हम रेगुलरली नहीं करते, लाइक सो फॉर एग्जांपल लाइक द माउंटेन ट्रेकिंग काइंड ऑफ थिंग एंड आल्सो हाइकिंग. तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन which I really want to do in my life. So that actually was is my one of my interests. Yes, whatever you want to pursue in near future and you do not have enough time right now, but you like that, that is your interest. And whatever you do in your free time and you can do in your free time, that is your hobby and you are practicing it on a regular basis. ठीक है? Yes. हाँ, next. नेक्स्ट इज अबाउट योर वर्क, कॉलेज, प्रोफेशनल लाइफ. एनडीए कैंडिडेट्स आपको सिर्फ स्कूल का पूछा जाएगा. what role have you taken in your school college, what responsibilities, what challenges do you face. ठीक है, स्टडी रिलेटेड और स्पोर्ट्स रिलेटेड, करिकुलर रिलेटेड, एनीथिंग. Yes, what ma'am. what kind of people do you enjoy working with. जॉब वाले जो हैं उनके लिए है ये. एनी कॉन्फ्लिक्ट और फेलियर, व्हाट डू यू लर्न. यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन में दे ओनली वांट्स टू नो कि आप सिचुएशन हैंडल कैसे करते हो. आप बहुत ज्यादा लड़ाकू विमान तो नहीं हो. ठीक है. सेकंड, यू आर गोइंग टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, विच इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स ऑन टीम वर्क. ठीक है. if you are the one who who is always pointing things out, है ना, and who is not supportive, who is always the one who criticizes the most, है ना, so that person is not suitable. In defense forces you have to be cooperative. Fine. Yes, ma'am. हाँ. Ma'am, for the reason that I have participated in many hackathons. I think probably everyone knows who are from the competitions. Any type of engineering background, part in the hackathons. तो मैम उसमें ना मैम मैंने बहुत लीड लिया था. ऑफ कोर्स आई नेवर बिकम चैंपियन बट बिकम टॉप 5 ऑन टॉप 10 फाइनलिस्ट. तो वो मेरा है, सर्टिफिकेट भी है. तो मैं वो लिख सकता हूँ ना मैम, हाँ मतलब हाँ, जो. उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको आप PIQ फॉर्म में को करिकुलर एक्टिविटीज में फिल कर देना. ओके मैम. मैम एक्चुअली दैट इज दैट co-curricular मैम, हाँ, क्योंकि there is क्योंकि one section of group activities and co-curricular. Also in one of your TATs, make one story related to that.
मैम मैंने बनाया है मैम, आगे से आपने रिव्यू नहीं किया था मैं इसलिए। कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन दैट। एक्चुअली एक एक रिव्यू करना थोड़ा सा लेंदी है मेरे लिए, आई एम वर्किंग ऑन इट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम जो हमारा जिसमें हमारे परसेंटेज वगैरह रहते हैं पीआईक्यू में, हम उसमें वहाँ पर जो ब्रैकेट रहता है हम उस पर लिख सकते हैं ना, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स पे, हाँ हाँ, राइट हैकेथॉन। राइट, लिख सकते हैं ओके। लिख सकते हैं। लाइक व्हेन आई एम फीलिंग ना, तो मैंने वहीं पर लिखे थे, और फिर जो को करिकुलर थी उसमें मैंने लाइक एनसीसी वगैरह ये सब चीजें थी, तो मैंने वो वहाँ पर डाल दी थी। हाँ वो भी ठीक है, मतलब डोंट लीव एनीथिंग ब्लैंक। को करिकुलर वाले सेक्शन में वो लिख दो, को करिकुलर वाला पार्ट। एक्चुअली जो स्कोर वाला आपका टेबल होता है ना, वहां पे यू हैव टू पुट एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, है ना। सो इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग आउटस्टैंडिंग एकेडमिकली, पुट दैट। सपोज आपने कोई ओलंपियाड जीता है, कोई क्विज कंपटीशन जीता है, कुछ और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है इन द एकेडमिक पार्ट, राइट। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट। Next, come to your achievements and failures. Biggest achievement, sports, curricular, academic, anything. Biggest failure. How have you overcome from that failure? What was the situation? And what are you doing now to achieve that thing again? जैसे जो रिपीटर्स होते हैं उनसे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, you have been screened out multiple times, you have been conference out, now how have you improved yourself, why we should select you, ठीक है। तो keep that question very much strong और रेडी करके जाना, क्योंकि अगर इसका आंसर सही दे दिया तो रिकमेंडेशन वहीं से आ जाएगी, ठीक है। कि पहले आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, इस बार क्या करके आए हो, एंड गिव द आंसर वेरी स्ट्रांग, सो देन दिस विल इम्प्रेस द आईओ, ठीक है। हाउ डू यू हैंडल प्रेशर और सेटबैक्स? टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू ओवरकेम अ डिफिकल्टी, ठीक है। तो बी रेडी विद दैट एग्जाम्पल, any hardship in your life that you faced and how have you overcome from that, ठीक है। So these questions might come, or what was your biggest fear? Biggest fear के लिए ready रहना है ना। The bad day of your life, है ना, why it is a bad day of your life. So these kind of situations, okay. मैम बिगेस्ट फेयर का उतना मैं कभी सोचा नहीं मैम, क्या हो मतलब कि क्या हो सकता है बिगेस्ट फेयर? बिगेस्ट फियर आप अपने लाइफ से ही सोचो कि आपके लिए what scares you the most, think about it। और if there is no biggest fear, तो आप बोल सकते हो सर in my life I'm not fearful of anything and nothing is my biggest fear। मैं सोच रहा हूँ बट ट्राई टू लाइक देखते हाँ, हैं क्या होता देखो है। सोनक, one more important thing, not every question is to be answered, अच्छा मैम। ठीक है। आप ये मत सोचो कि उन्होंने पूछा है कि मेरा बिगेस्ट फियर पूछा है तो मुझे अपना कुछ बिगेस्ट फियर ही बताना है, दिस विल इम्प्रेस हिम, नो। ही इज चेकिंग ऑन द OLQs एंड ही वांट्स टू नो कि आप ऑफिसर लाइक मटेरियल हो या नहीं। अगर आप हाइट से डर जाते हो, या आप दोस्तों से दूर जाके डर जाते हो, या फैमिली से दूर जाके डर जाते हो, वट एवर बी इट, तो दिस डजंट मेक यू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। यस मैम, मैम उस पे ही आ रहा था क्योंकि मैम मुझे तो मतलब इंजरीज बहुत हुई हैं थ्रू आउट माई लाइक, मैं एकेडमी में खेलता था फुटबॉल एंड ऑल्सो माई मार्शल आर्ट्स क्लासेस, तो मैं उतना ध्यान देता नहीं था, बट लिटिल बिट जैसे सर्जरी हुआ था, बट उसके पहले तक ना मुझे उतना वो था नहीं मैम, ये हाँ, तो फियर और आप अपना समथिंग। बिगेस्ट फियर ये डाल सकते हो कि माय बिगेस्ट फियर इज गिविंग अप माय स्पोर्ट्स, बिकॉज समटाइम्स आई गेट इंजर्ड, सो आई गेट स्केर्ड कि ऐसा ना हो कि मेरा स्पोर्ट्स छूट जाए, ओके मैम, है ओके ना। मैम, एंड नाउ गॉट योर पॉइंट। आई विल नॉट लेट दिस हैपन, यस मैम। ठीक है। चलो, यस मैम। next is situational. Some questions would be situational. If the interviewing officer wants to know your some qualities, if he is not sure of, मान लो स्पीड ऑफ डिसीजन पे डाउट है, तो he can ask, ठीक है। just a second, read these questions, I have a call। Hello।
हाँ बोलिए। 12:30। ओके। ठीक है, पढ़ लिया। Yes, ma'am. हाँ, so situational as if कि what would you do if someone criticizes you? How do you react under pressure? How do you set goals for yourself? है ना? How do you work under pressurized environment? Or describe an incident where you helped someone. Basically, these all qualities are there because OLQs check हो रहे हैं. ठीक है? तो अपने सारे आंसर्स वैसे प्रिपेयर करना. व्हाट वी कैन डू फॉर टुमारोज सेशन, वी कैन डिस्कस OLQs in detail and how to frame your answers or your personality under those OLQs. ठीक है? Yes, ma'am. along with some question answers कि ऐसे क्वेश्चन पे कैसे आंसर देना है. फिर कल के बाद से आई कैन स्टार्ट योर वन ऑन वन मॉक इंटरव्यूज. कल ले लूंगी मैं या फिर परसों ले लूंगी. ठीक है? कीप दीज 2 days रेडी फॉर योर मॉक इंटरव्यूज. फाइन. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. I'll give you different timings, तो वो आप नेक्स्ट. फिर है डिफेंस के बारे में. सम क्वेश्चंस वुड बी देयर कि आपको कौन सी ब्रांच में जाना है. पहले तो वाई आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है? यू गिव दिस आंसर, देन विच ब्रांच डू यू प्रेफर एंड वाई. गिव दिस आंसर, देन SSB के लिए कैसे प्रिपेयर किया है, व्हाट क्वालिटीज डू यू हैव, व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट गेट रिकमेंडेड. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस पे सर आई कम अगेन एंड आई डोंट थिंक दैट आई वोंट बी रिकमेंडेड. आई थिंक आई हैव डन इनफ ऑफ द hard work this time. I'm sure that I will be recommended. Right? Yes, ma'am. और कौन सी ब्रांच में जाना है इसको थोड़ा ज्यादा फोकस करके तैयार करना कि क्यों आपको उस ब्रांच में जाना है. प्लीज रीड मोर अबाउट डिफेंस फोर्सेस, व्हाट ड्रोन्स वी हैव, व्हाट एयरक्राफ्ट वी हैव, व्हाट टैंक्स वी हैव, व्हाट शिप्स वी हैव. ठीक है? और what are their mottos, कहाँ कौन सी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कितने टाइम की ट्रेनिंग है, और what are the entries to join specific branch. ठीक है? what are services, what are combats, और कौन किसके अंडर में आता है. वुमेन के लिए something has been started for the first time, so what is that. ठीक है? स्पेसिफिकली फॉर डिफेंस. ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जिनको आपको रेडी करना पड़ेगा. मैम जैसा कि मेरा तो रोल फिक्स दे दिया है नेवी में, दैट इज द नाउ एयर ऑपरेशन ऑफिसर. सो दिस आर द ऑफिसर हु आर एयरबोर्न एंड लाइक कंट्रोलिंग द सोनार्स एंड रडार्स. लाइक जैसा कि मान लीजिए P-81 नेपच्यून एयरक्राफ्ट होता है ना नेवी का. सो एक्चुअली दे आर मतलब एक्चुअली सो वही है, मतलब वो तो फिक्स दे दिया था नेवी ने. हाँ, यू आर सिलेक्टेड फॉर दैट तो रोल. आपको see if you have the branch जिसके लिए आप जा रहे हो, so know everything about that branch. ठीक है? so you should know each and everything about that branch, and बाकी की जो branches होती हैं उसके बारे में भी little bit of details you should be knowing. Fine. Yes, ma'am. Then general awareness, prepare some current affairs, national, international events that are happening, and some details about those incidents, about those events. ठीक है? The details are very much required. And what was the major topics in last 5-4 years? Suppose COVID वाला चीज तो पुरानी हो गई. Then Russia, Ukraine, Iraq, Syria, Israel, Palestine, India, US, है ना? India, Russia. These relationships, summits, है ना? Organizations, है ना? तो और ये 4-5 years के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह मेजरली चल रहे हैं वो सारी चीजें. अभी रिसेंटली इज द इंडिगो क्राइसिस, है ना? Yes, yes, ma'am. हाँ, so please be ready with those questions. What are the impacts on India and how do you feel that what they should do? ठीक है? What are the international implications? How India is affected? These kind of questions. ठीक है? और which leaders about your role model he can ask. Who is your role model? Why he is your role model? ठीक है? So some good qualities of that person you have to mention.
मैम लीडर के परसेप्शन में लाइक आई हैव लाइक सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज ऑलवेज लाइक बीन माय रोल मॉडल। तो उनमें से मैम शायद मुझे मुझे हमेशा लगता था इफ इन माय इंटरव्यू इफ आई सेड दैट दे आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट दैट डू यू बिलीव इन द हिज डेथ कॉन्स्पिरेसी और समथिंग लाइक दैट, तो ये सही रहेगा बोलने में और आई नीड टू चेंज द पर्सन? No, don't change the person. Your role model is your role model. तो वो क्वेश्चन के डर से डोंट चेंज योर रोल मॉडल यार। मतलब ओके you can just say कि sir, I am not aware of that thing. I only admire what all things he has done in his lifetime. So I am more inclined to that. ओके ठीक है। फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो CIQ पैटर्न में रैपिड फायर का, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ रैपिड फायर। ठीक है, टेल मी योर नेम, एज, प्लेस, फैमिली डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अचीवमेंट्स, हॉबीज, friends, qualities you like, qualities you do not like, teachers, qualities you like, you do not like, some memorable incident about your what all places have you visited recently, a failure and what have you learned, why do you want to join forces. This is one example of CIQ. ठीक है। Yes, so you have to prepare such questions accordingly. ओके मैम। ओके। और 2-3 बार मतलब 2-3 राउंड्स में CIQ पूछा जाएगा, मोस्टली टू फ्रेशर्स। रिपीटर्स से 1-on-1 क्वेश्चन चलता है। मोस्टली ये पूछते हैं कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट करी है और क्यों करी है और इसका फायदा क्या है। ठीक है। मैम ये वाला स्लाइड थोड़ा भेज दीजिएगा ना ग्रुप में। हाँ, मैं इसका पूरा आपको PPT ही भेज दूंगी PDF फॉर्म में करके। एंड प्लीज बी रेडी फॉर द इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू कल परसों कभी भी हो सकता है। और मैम OIR के लिए थोड़ा मतलब OIR सेट मेरे पास कुछ है, मतलब वो बुकलेट टाइप का कुछ है, बट अच्छा रहेगा कहाँ से करना OIR? SSB क्रैक वाला जो है वो कर लिया है आपने? थोड़ा